Hello everyone and welcome to my channel Decode Bear Act. This is a part 2 of section 173. In lecture I dealt with the section 173 wherein I taught you about how the information has been lodged, the what the case of sexual offences, and if a person is temporarily physically mentally any other disabled, so how their statement is recorded. And yeah, I end with the class with the remedies which was available to the aggrieved person if the police officer refused to lodge an FIR. So in this video I will continue from that. In previous lecture I told you that the aggrieved person has two types of remedy available to them. The first remedy is executive remedy and the second one is judicial remedy. So as I told you earlier also in the previous lecture also that first thing and it is a duty bound to the officer in charge of the police station FIR. But what if the police officer denied to lodge an FIR? So the remedy available to the aggrieved person is that the aggrieved person in writing and through post send the information to the superintendent of police, and superintendent of police after seeing all this information believes that there is a sufficient reason or sufficient ground to do an investigation in this case. So the police and the superintendent of police himself or direct his subordinate officer to do an investigation, and the police officer who do investigation has the power as that was available to the officer in charge of the police station. Okay. And the second remedy is judicial remedy, wherein the aggrieved person can complain to the magistrate also. But this judicial remedy is different from the complaint procedure. This is a last remedy in the hand of the aggrieved person when the refuse to lodge an FIR or the superintendent of police also neglect to lodge an FIR. So first thing, as I told you earlier also in the previous lecture, that the aggrieved person cannot directly jump toward the judicial remedy. First he has to exhaust the executive remedy available in his hand, because when we read further I will tell you that in one of the section of the BNSS it states that when the aggrieved person going to complain to the magistrate, then he has to give an affidavit showing that he has written the same complaint or the information, he has given the same information to the superintendent of police, and superintendent of police has refused to do an investigation. Okay, so I think I make you clear what actually the remedy available to the aggrieved person. So I will explain it once again. So as I said earlier that there are two remedy available to the person aggrieved. First one is executive remedy and the second one is judicial remedy. In executive remedy, the aggrieved person can complain in writing and through post to the superintendent of police, and in the judicial remedy, after exhausting the executive remedy, the aggrieved can complain to the magistrate also. So these are the thing I want to tell this. Now the next topic that is very much important about the FIR, that is evidentiary value of FIR. So अब evidentiary value की हम बात करें, so FIR की दो evidentiary value होती है. एक तो आपकी होती है substantial and होती है procedural. Substantial कैसे होगी, तो ये तीन तरीके दिए गए हैं कि इसमें डायरेक्टली हम FIR की जो भी स्टेटमेंट है उसे हम यूज़ कर सकते हैं. एंड प्रोसीजर में यह हो कि जो FIR जो भी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेंट देता है उसको यूज़ किया जा सकता है ऐसा कोराबोरेशन के पर्पस के लिए एंड कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पस के लिए भी किया जा सकता है. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट दैट इज़ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ FIR. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको समझने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल. देखिए क्या होता है कि लेट्स सपोज कि एक पर्सन है ए, ठीक है,
वो कंप्लेन, वो इंफॉर्मेशन लेकर आया कि दैट समवन कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है। अब एफआईआर यहाँ पर लॉन्च हुआ। अब पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसा ही यू ऑल गाइस नोज दैट इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहती है, राइट। बट जो ए पर्सन है उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका विटनेस 1 है, ठीक है। तो विटनेस 1 ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो तो इन्वेस्टिगेशन से पहले दिया है, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ देन उसके बाद इंक्वायरी चली, इंक्वायरी बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब ट्रायल में क्या हुआ, जो विटनेस 1 है उसे वापस बुलाया गया और उसने सेम स्टेटमेंट जो उसने एफआईआर में बोला है, अगर वो सेम स्टेटमेंट ट्रायल के टाइम पर बोलता है तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन वो ये इंफॉर्मेशन जो उसने दिया यहाँ पर दिया है एंड जो ट्रायल पे इंफॉर्मेशन देगा वो दोनों को हम कोराबोरेट किया जा सकता है एंड इससे क्या हो जाएगा, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ जाएगी। आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए 181 क्या बात करता है, ये बात करता है कि स्टेटमेंट जो कि दिया गया है पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द कोर्स इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया है तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। बट एफआईआर के लॉन्च होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है, एफआईआर लॉन्च होने से पहले नहीं होता है। इट इज़ रॉन्ग टू से कि नहीं होता है, समटाइम इट्स हैपन कि कभी कभी हो जाता है, बट जर्नल इज़ कि पहले एफआईआर लॉन्च होता है देन आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, राइट। तो जब एफआईआर लॉन्च हुआ तो उसमें जो भी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेंट ने दी है वो सेक्शन 181 से हिट नहीं होगा, राइट। अब जब हिट नहीं होगा तो ये जो स्टेटमेंट जिस विटनेस ने दिया है उस किया जा सकता है ट्रायल के टाइम पर। और जो स्टेटमेंट पर्सन ए ने, लेट सपोज ए पर्सन है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो अगर लेट सपोज उसने कहा है कि एक्स किल वाई, ठीक, एक्स किल वाई, एंड वो सेम स्टेटमेंट अगर ट्रायल में सेम स्टेटमेंट बोलता है तो इससे क्या हो जाता है, जो उसकी वैल्यू रहती है इंफॉर्मेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसे हम इसे कोराबरेट भी कर सकते हैं एंड इससे इस पर्सन की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली कोराबरेशन के रिस्पेक्ट में। करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के रिस्पेक्ट में। लेट सपोज यही सेम एग्जांपल है जिसमें एफआईआर के टाइम पर ए ने कहा कि एक्स किल वाई, बट जब ट्रायल में उसने कहा कि वाई किल एक्स। अब इससे क्या हुआ, अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। अब जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कम हो गई। तो इससे क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। आई बिलीव आई मेक यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ओके। मूविंग टू एफआईआर। तो क्योंकि सब्सटेंशियल पार्ट बहुत इजी है, सो दैट्स व्हाई आई फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड द पार्ट। सब्सटेंशियल पार्ट, तो सब्सटेंशियल पार्ट यानी कि एफआईआर को डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है एज एन एविडेंस। एफआईआर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन एविडेंस, एविडेंस के तौर पर इसे डायरेक्टली कब यूज़ किया जा सकता है। तो 3 सर्कमस्टांसेस है या 3 केस हम कहेंगे जिसमें डायरेक्टली एफआईआर को यूज़ किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि ये बेसिकली आपका सेक्शन 26 ऑफ बीएसए में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज कोई पर्सन है, लेट सपोज कि कोई वुमेन है, विथिन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज उसे बॉर्न करके, बॉर्न मतलब द रिलेटिव बॉर्न है, बॉर्न हर, देन आफ्टर जब जो कोई स्टेटमेंट वो देगी, उसने स्टेटमेंट दिया पुलिस ऑफिसर को और
स्टेटमेंट देने के 2-4 दिन बाद वो मर गई। मतलब जिस पर्सन ने, इन्फॉर्मेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेंट कौन जनरली यहाँ पर होता है, इन्फॉर्मेंट जनरली आपकी विक्टिम ही रहती है। विक्टिम ने कोई स्टेटमेंट दिया, विक्टिम स्टेटमेंट देने के बाद मर जाती है तब, मतलब डेड, ये आपका ये डेथ होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इसे डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट करेंगे। व्हाट इफ वो नहीं मरी तब, तो इसकी एविडेंशियल वैल्यू अलग हो जाती है, जो कि आप बीएसए के सेक्शन 12 में आप पढ़ लेना, उसमें दिया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के बाद जो इन्फॉर्मेंट उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसने स्टेटमेंट दिया है तो उसकी एविडेंशियल, उसको डायरेक्ट ऐसा एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। ये है डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है एडमिशन। एडमिशन क्या होता है कि एफआईआर में आपने एडमिशन कर दिया। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि ए पर्सन है, वो एफआईआर लॉन्च कराता है कि दैट बी किल्ड सी। ठीक है, सब्सिक्वेंटली वो फिर से आता है एंड सेड कि आई वॉज प्रेजेंट देयर, जब ए बी सी को किल कर रहा था, जब मार रहा था, आई वॉज प्रेजेंट। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ऑफिसर ने, कम टू नो दैट ए इज़ अ रियल कल्प्रिट हु किल सी, तो ये क्या हुआ, एडमिशन हो गया। तो ये आपका एडमिशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट जो कि आपके 23 सेक्शन 23 प्रोवाइजो में दिया गया है बीएसए के। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई अक्यूज पर्सन है, आपको जिस्ट आपको समझा देती हूँ क्या कहता है डिस्कवरी स्टेटमेंट, क्या कॉन्सेप्ट है ये, कि लेट सपोज कि कोई पर्सन है, कोई अक्यूज्ड है, मर्डर किया, तो जो उसने वेपन यूज़ किया ऐसे प्लेस पे हाइड किया है जो कि ऐसा जर्नल दिखे ना किसी को, एंड जब इंटरोगेशन किया गया एंड उससे सब कि ये वेपन यहाँ पर है, तो अब उस क्या हो जाता है, उसी को हम बेसिकली डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ कि अगर एक्यूज पर्सन है, उसने कोई वेपन यूज़ किया है एंड इंटरोगेशन के टाइम पर उसने बता दिया कि ऐसा वेपन इस पर्टिकुलर में है, और वह एरिया ऐसा होना चाहिए जो कि पब्लिक एरिया ना हो, मतलब प्राइवेट एरिया, या तो वो बोल सकता है कि अपने घर पे रखा है, या कोई अगर भी रखा है तो ऐसी कंस्पिशियस प्लेसेस पे कि पता ना चले कि कोई जनरल पर्सन है, पब्लिकली ओपन ना हो। तो अगर उसने स्टेटमेंट दिया है, देन उसके बाद पुलिस को वो वेपन उस प्लेस पर मिल जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्कवरी स्टेटमेंट। राइट, सो ये हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया है। एक तो रेमेडी क्या अवेलेबल होता है ग्रीफ पर्सन के पास, और सेकंड हमने बात की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है एफआईआर के। नाउ थर्ड एंड द लास्ट इज डिले इन लॉजिंग एफआईआर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ बिलीव्ड या ऐसा माना जाता है कि जितना आप जल्दी एफआईआर लॉन्च करेंगे दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज अगर डिले हो जाता है एफआईआर लॉन्च करने में, तो उससे क्या हो जाती है, जो कि स्टेटमेंट जो भी वो पर्सन इन्फॉर्मेंट देता है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। बट अगर वो सफिशेंटली प्रूफ कर दे, एक्सप्लेन कर दे कि क्यों या क्या रीज़न है उसका, देन उसको कोई ट्रायल के टाइम पर कोई अफेक्ट नहीं है। अगर कोई सफिशेंट रीज़न भी नहीं है एंड ऐसे ही अगर किसी पर्सन ने देरी की है या वो लेट करता है इंफॉर्मेशन लॉन्च कराने में, तो चांसेस आर देयर कि देयर इज़ अ एविडेंस टैम्परिंग एंड ऑल दिस, सो इट इज़ सेड कि जल्दी से जल्दी एफआईआर लॉन्च कराया जाए। बट हाँ, इफ़ देयर इज सफिशेंट रीज़न, तो दैट इज़ इट नॉट गोइंग टू अफेक्ट इन द ट्रायल। अब इसको समझाने के लिए देयर इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस, दैट इज़ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इन दिस केस बेसिकली इस केस में ये था कि एक सेक्सुअल ऑफेंस हुआ था एक वुमन के साथ, जिसके कारण जो वो वुमन रहती है वो लेट एफआईआर लॉन्च कराती है। तो इस पर कोर्ट ये कहता है कि अगर जहाँ रहते हैं या होते हैं किसी फीमेल के अगेंस्ट, तो जनरली इट इज़ ऑब्वियस कि इट टेक टाइम, बिकॉज वुमन सबसे पहले ओपन, मतलब वुमन जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वो तो 2-4 दिन ट्रॉमा में रहेगी, देन उसके बाद वो रिकवर होगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो सेक्सुअल ऑफेंसेस में इट इज़ अलाउड कि मतलब कुछ समय की देरी हो सकती है एंड इट डज नॉट अफेक्ट द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एफआईआर। सो दिस इज इट।
ये इसमें इस केस में कहा गया था. सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. In next video I will going to discuss the next section of the chapter 13, that is section 174. Till then, thank you for watching the video, and if you have any doubt, do let me know in the comment section. Till then, take care. Bye bye.